آپ نے دی تھی اسی روز اس کی اماں کو خبر، والدہ روئی تھی 2 روز تلک پیٹ کے سر اس نواسے کو، مگر بھول نہ جانا ذرا ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا، ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا ذرا، یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہی قبر کے تھر آئی ذری ہے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسر، ارے کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، اے میرے کیسوں والے میرے صابر شبیر، میرے بے کس میرے مظلوم مسافر شبیر، نہ رہا کوئی تیرا یاور ناصر شبیر، ہائے اے گورے غریباں کے مجاور شبیر، ارے تو جہاں جائے گا پیارے وہیں چلتا ہوں میں، خاک اڑاتا ہوں تربت سے نکلتا ہوں، خاک اڑاتا ہوں تربت سے نکلتا ہوں میں، کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بحث، گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا نہ چھوڑوں، اپنے بچے کو اکیلا نہ چھوڑوں میں، سن کے یہ شہنے کیا آخری رخصت کا سلام، نکلے روتے ہوئے جب روضہ انور سے امام، شہ سے اس دم یہ کیا رو رو کہ زینب نے کلام، قبر سے ماں کی مجھے لے چلو یا شاہ نام، لوگ ہمراہ ہیں میں ملنے میں کیوں کر رہا ہوں، ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر رہا ہوں، ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر رہا ہوں، ماں کی تربت پہ گئے شاہ بچشم خوبار، اتری محفل سے بسدا فغاں زینب زار، دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار، ہاتھ زہرا کے لہر سے نکل آئے ایک بار، آئی آواز نہ رو دل کو قلب ہوتا ہے، قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شق ہوتا ہے، قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شق ہوتا ہے، یہ جب طرح کی اس وقت قیامت برپا، گردن شاہ میں تھے دستے جناب زہرا، اور بسنت یہی قبر سے آتی تھی صدا، میرے مظلوم بے قسم مظلوم یہ ماں تجھ پہ فدا، تڑپے صدمے سے نہ کیوں ہماری بیٹا، چھوڑتے ہو میری تربت کو میواری بیٹا، چھوڑتے ہو میری تربت کو میواری بیٹا، ارے ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ مسد پہ اس پر، شکم غیر سے گو ہے تو وہ ہے میرا پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سر، ابھی روار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، آج فرماتی ہے اماں ادھر آؤ، آج فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آگے عباس نے سر رکھ دیا بھائی نے مزہ، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کا حفاظت کی رہے اے دلدار، کوئی غربت میں سے مار نہ ڈالے گئے
میرا شبیر ہے تیرے حوالے میرا شبیر ہے تیرے حوالے کوئی غربت میں سے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے تیرے حوالے میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا خواتین حضرات طرف ایک اعلان ہے اس وقت کہ وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے اس دفعہ انشاءاللہ پوری کوشش کیجیے کہ وقت کے اوپر یہاں پر جمع ہوں اور صحیح وقت پر مولانا آپ سے صرف ایک اعلان ہے کہ مولانا کے وقت کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور صحیح وقت کے اوپر ایک اور اعلان ہے کافی اپالوجی کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے نیوز ایڈر میل کیا ہے منگل کے روز اور وہ میل میں ہے تو وی ریئلی اپالوجائز فار دیٹ کہ جتنی زیادہ تاخیر ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک دو دن مل جائے گا یہاں پر نیوز ایڈر کافی موجود ہیں محرم کے سفر کے پروگرام کی تو مولانا کے لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھیں اور انشاءاللہ 6:30 بجے جی ویک ڈیز میں 6:30 بجے اور ویکینڈ پہ جو جمعہ اور ہفتے اور جمعہ اور ہفتے کو جو ہے وہ 8:30 بجے یہاں پر نیوز ایڈر موجود ہے ایگزیکٹلی اس پہ ایگزیکٹ ٹائم موجود ہے جی نماز کے بعد ہے تو ویک ڈیز پر 6:30 بجے یہاں پر جمع ہونے کی کوشش کی جائے شکریہ محمد والے محمد صلوات Don't be shy. سورہ فاتحہ صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظماء واحتجب عن الأبصار بالذات ثم اقتدر على الأشياء بالقدرة ذا الملك والملكوت وذا العزة والجبروت والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحسونين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذكرهم بأيام الله وإنه في ذلك لآيات لكل صبار شكور
50th सेंचुरी की आज शब अव्वल। सोगवारान हुसैन जिन्होंने रोज़े अलस्त में कि जब अल्लाह ने सोल्स को, स्पिरिट को जमा करके अपनी वहदानियत का, रसूल की रिसालत का और आले मोहम्मद की विलायत का इकरार लिया था, उस वक्त सोगवारान हुसैनी ने गम हुसैन के मनाने का इकरार किया। ये वही रोज़े अलस्त का अहद व पैमान है जिसको पूरा करने के लिए और जिस अहदे वफा को अंजाम देने के लिए हम इन मजालिस अज़ा में शिरकत करते हैं। वो शमा जो कि जली थी कभी वीराने में, वो शमा जो कि जली थी कभी वीराने में, आज रोशन है हर एक दिल के अज़ा खाने में। अज़ीज़ान गिरामी, मैं हमेशा शब अव्वल की मजलिस से खिताब करते हुए कुछ अशार पढ़ता हूँ कबल इसके कि मैं उन अशार को आप हज़रात के अज़ीज़ समाअत करूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब हज़रात का कि गुज़िश्ता साल आपने जिस इल्मी शौक़ और मारिफत के साथ मेरी मजालिस को समाअत फरमाया, और खुद आप हज़रात के इसरार पर 8 मुहर्रम को मैंने वादा किया कि इंशाअल्लाह अगर रब्बुल आलमीन ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं ज़रूर हाज़िर हूँगा, और मैं अपने वादे की तकमील के लिए फिर मौजूद हूँ 1 साल के बाद। गुज़िश्ता मैनेजिंग कमेटी ने माशाअल्लाह जो कुछ मेहनतें और सही और कोशिशें इस इमाम बारगाह और मस्जिद की खिदमत के लिए की, परवरदिगार इसका अज्र उन सब हज़रात को अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि अब जो मौजूदा मैनेजिंग कमेटी आई है, परवरदिगार उनको अपनी तौफीक अता फरमाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का हक अदा कर सकें। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ इंसानी में, ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत सारे फलसफे पेश किए गए, पावर के, ताकत के, कुव्वत के। कुछ लोगों ने ये कहा कि कुव्वत और ताकत का ओरिजिन, उसका सरचश्मा इख्तिदार है, हुकूमत है। कुछ लोगों ने ये कहा कि कुव्वत और ताकत का फाउंटेन, उसका ओरिजिन दौलत है। कुछ लोगों ने ये कहा कि कुव्वत और ताकत का सरचश्मा मेजॉरिटी है, अक्सरियत की ताकत है। तो ह्यूमन हिस्ट्री में ओरिजिन पावर के और ताकत के मुख्तलिफ बयान किए गए। किसी ने हुकूमत को और सियासत को कुव्वत का सरचश्मा ओरिजिन करार दिया, किसी ने दौलत को, मादी वेल्थ को कुव्वत और ताकत का सरचश्मा करार दिया, किसी ने अक्सरियत, मेजॉरिटी, ट्राइब्स और कबीलों की ताकतों को कुव्वत और ताकत का सरचश्मा करार दिया। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में फकत हुसैन है, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में फकत हुसैन इब्ने अली हैं कि जिन्होंने इनकार किया इस बात से कि न कुव्वत और ताकत का सरचश्मा दौलत है, न इख्तिदार है, न अक्सरियत है, कुव्वत और ताकत का सरचश्मा मजलूमियत है। हुसैन इब्ने अली ने अपनी मजलूमियत को कुव्वत और ताकत का सरचश्मा करार दिया, और बादे करबला एक नई तारीख लिखी गई कि मजलूम की ताकत इस जमीन पर सरवाइव करने वाली, प्रीवेल करने वाली सबसे इटरनल फोर्स। आज फिर हमने सजाया है अलम तेरे लिए, फिर वही सुबह, वही शाम, वही गम की सदा,
फिर वही सुबह वही शाम वही गम की फजा, गूंजती ताबा फलक हाय हुसैना की सदा, गूंजती ताबा फलक हाय हुसैना की सदा, अपनी तासीर दिखाती हुई जहरा की दुआ। आप जहरा की दुआ है, इस गम को मनाने के लिए जमा हुए हैं। अपनी तासीर दिखाती हुई जहरा की दुआ, हाथ मातम में तो हर चश्म है नम तेरे लिए, आज फिर हमने सजाया है कलम तेरे लिए। वाकयाते शह मजलूम को दोहराएंगे, खुद भी रोएंगे जमाने को भी रुलवाएंगे, दाग सीनों में लिए कब्र में सो जाएंगे, हश्र में लेके उठेंगे यही गम तेरे लिए, आज फिर हमने सजाया है अलम तेरे लिए। अज़ीज़ान गिरामी, आज की शब की जो तकरीर है मेरी अशरे की आने वाली तमाम तकरीरों से जुदा है, एक सेपरेट तकरीर है आज की। इंशाअल्लाह कल से मैं अपने अशरे की तकारीर का आगाज करूंगा। आज की इस तकरीर को एड्रेस और खिताब करने के लिए मैंने सूरह हूद की इस आयत को मुंतखब किया कि जिसमें रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। रसूल, इनको याद दिलाओ, रसूल इनको रिमेंबर करवाओ, मेक देम अवेकिन, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको खुदाई दिनों की याद दिलाओ। अय्यामुल्लाह, द डिवाइन डेज, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको खुदाई दिनों की, अय्यामुल्लाह की याद दिलाओ। इन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, क्योंकि उन खुदाई दिनों के अंदर निशानियां हैं, प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, क्योंकि उन अय्यामुल्लाह में खुदाई दिनों के अंदर आयात हैं, निशानियां हैं, सब्र करने वाले के लिए भी, शुक्र करने वाले के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये कुरान मजीद की आयत है सूरह हूद की कि जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया, ज़क्किरहुम, सीग़े अम्र है, ऑर्डर है, ये इंसान का हुक्म नहीं, सैयदुल बशर का हुक्म नहीं, खालिक़े कायनात का हुक्म है। और ये हुक्म सिर्फ मुबाह नहीं, यानी आपकी चॉइस पर नहीं, ये हुक्म सिर्फ मुस्तहब नहीं, ज़क्किरहुम वाजिब हुक्म है। रब्बुल आलमीन आयत के पहले लफ्ज से ऑर्डर कर रहा है, ज़क्किरहुम, सेलिब्रेट करो। अज़ीज़ान गिरामी, ये आयत अज़ादारी इमाम की कुरान से प्रूफ और सबूत बन रही है। ज़क्किरहुम, सेलिब्रेट करो, मनाओ, याद दिलाओ, वे अय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों की। ये डिवाइन डेज कौन से हैं? अगर कोई इंसान होता तो हम कह सकते थे कि मुमकिन है कि वो बर्थडे हो या डे ऑफ द डिमाइज हो, डेथ का दिन हो, तो वो उस इंसान के दिन करार पा सकते थे। अगर प्लूरल टेंस होता, यौमुल्लाह, अल्लाह का दिन याद दिलाओ, तो हम कह सकते थे कि हो सकता है कि ये क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात हो। लेकिन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के वक्त भी सूरज और चांद मौजूद न थे जो यौम का, दिन का कॉन्सेप्ट पैदा होता। तो अब ना तो प्लूरल टेंस है कि यौमुल्लाह से क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स मुराद ली जाए, और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है कि उसके बर्थडे या उसके डेथ के डे को, एनिवर्सरी को मनाया जाए। अय्यामुल्लाह है, और उनका इफेक्ट क्या है अय्यामुल्लाह का? फइन्ना फी ज़ालिका ला आयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर,
उन खुदाई दिनों के अंदर सब्र और शुक्र करने वालों के लिए सबूत हैं, दलीलें हैं, मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स। सब्र, कुरान मजीद ने सब्र की तारीफ की, बशर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। ये सब्र की डेफिनेशन है कुरान में कि सब्र मुसीबत के अगेंस्ट होता है। कुरान मजीद ने शुक्र की तारीफ की, शाकिरुन लिअनउमिही, शुक्र नेमत के मुकाबले में होता है। सब्र मुसीबत के मुकाबले में, शुक्र नेमत के मुकाबले में। लेकिन यहां कुरान ने कहा कि निशानियां हैं, एग्जाम्पल्स हैं, मॉडल्स हैं, नमूने हैं, स्पेसिमेंस हैं, मिसालें हैं, साबिर के लिए नहीं, सब्बार के लिए, शाकिर के लिए नहीं, शकूर के लिए। साबिर सिर्फ सब्र करने वाला, सब्बार बहुत बड़ा सब्र करने वाला, शाकिर शुक्र करने वाला, शकूर बहुत बड़ा शुक्र करने वाला। तो अब अगर साबिर होता तो छोटी मुसीबत होती, लेकिन सब्बार है तो मुसीबत छोटी नहीं, ज़िब्हे अजीम है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले गिरानी। मैं फिर आयत को ट्रांसलेट करूं, ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, याद दिलाओ। ये किसको हुक्म दिया? रसूल को। किसने हुक्म दिया? अल्लाह ने। किस बात की याद दिलाने का हुक्म दिया? अय्यामुल्लाह का। तो अब रिसालत की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी उन खुदाई दिनों की इंपॉर्टेंस, अहमियत और याद दिलाना भी है। रिसालत की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी यह भी है कि रसूल अय्यामुल्लाह की मारिफत करवाएं। और वो अय्यामुल्लाह क्या है? वो साबिरीन और शाकिरीन के लिए आयतें हैं, निशानियां हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, सिर्फ कुरान को पढ़कर, उसकी आयतों को पढ़कर सवाब हासिल करना माह रमजान में काफी नहीं। कुरान मजीद खुद कहता है कि कायनात में भी उसकी आयतें हैं जिनका सुनना और जिनका सुनाना भी कुरान मजीद का वजह तकमील का सबब बन जाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सिर्फ आयतें कुरान में नहीं, फइन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। उन अय्यामुल्लाह में, उन डिवाइन डेज में, उन खुदाई दिनों में आयात हैं, निशानियां हैं। आयात किस लिए आई है? इंसानों को यकीन की मंजिल तक ले जाए। आयात यानी प्रूफ, निशानियां कि जिनके जरिए खुदा पर यकीन हासिल किया जाए, जिनके जरिए गैब पर ईमान और बढ़ जाए। इसलिए इकबाल ने कहा कि उनके बख्शद बे यकीनी नारा यकीन। ये वो है जो बे यकीनों को यकीन की दौलत अता करता है। उनके बख्शद बे यकीन नारा यकीन, उनके लर्ज़त अस्सुजूद है वो जमीन। और जब वो जमीन पे सजदा करता है तो जमीन भी उसके सजदे के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके सजदे में इतना वजन है, इतनी ग्रेविटी है, उसके सजदे के अंदर इतना वेट है। उनके बख्शत बे यकीन नारा यकीन, उनके लर्ज़त सुजूद जमीन, उसके सजदे से जमीन लरसती है। जमीन उसके सजदे के वजन को, उसकी रूहानियत के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अज़ीज़ाने गिरामी, सिर्फ खंदक के दिन अली की ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल नहीं, आशूर के दिन हुसैन का सजदा भी इतना वजन रखता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु गिरामी, आज की इस तकरीर में हम पहली मजलिस है ये मारिफत हासिल करें करबो बला की और हुसैन इब्ने अली की कुरान से। ज़क्किरहुम, अल्लाह ने हुक्म दिया, रसूल को हुक्म दिया, अय्यामुल्लाह के मनाने का हुक्म दिया। और उन अय्यामुल्लाह को डिफाइन यूं किया, फइन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर।
उन खुदाई दिनों के अंदर हर जबरदस्त सब्र करने वाले के लिए, सब्बार, साबिर नहीं सब्बार, बहुत बड़े सब्र करने वाले के लिए और बहुत बड़े शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। मैंने अर्ज किया कि सब्र मुसीबत के मुकाबले में, शुक्र नेमत के मुकाबले में। तो अब अगर सब्बार के लिए निशानियां हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत है जिसको कुरान ज़िब्हे अजीम कहता है। और अगर शुक्र है तो फिर वो नेमत है कि जिसके बाद कोई नेमत नहीं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अब गदीर का दिन करार पाया कि आज के दिन मैंने तकमील नेमत कर दी। तो अब अय्यामुल्लाह में या तो गम के दिन है या अय्यामुल्लाह में खुशी के दिन है। तो अगर गम के दिन है तो ज़िब्हे अजीम सबसे इंपॉर्टेंट अय्यामुल्लाह करार पाता है, और अगर शुक्र है नेमतों का तो गदीर का दिन सबसे बड़ा दिन करार पाता है। एक दिन मुसीबत अपने कमाल पर पहुंचकर कुरान की डेफिनेशन में ज़िब्हे अजीम बन रही है, और एक दिन नेमत अपनी फर्निश होने के बाद, परफेक्ट और कंप्लीट होने के बाद इत्माम नेमत करार पा रही है। तो दीदाने गिरामी, कुरान मजीद की आयत बज़ाहिर जर्नलाइज है, और अगर आप इसको स्पेसिफिक करें तो एक तरफ इसमें कर्बला पिन्हा है तो दूसरी तरफ गदीर की विलायत पिन्हा है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो वज़ीरानी गिरामी, आपने मुलाहिजा फरमाया कि अब मुहर्रम, हिलाल मुहर्रम नमूदार हुआ और आप इमाम बारगाहों की तरफ आपने रुख किया, फर्श अज़ा पे बैठे, तो ये इस कुरान की आयत के हुक्म पर अमल किया जा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मजीद को याद करके सुनना और सुनाना और है, और कुरान मजीद की एक आयत पर अमल करना और है। अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत के तहत ये अय्याम अज़ा मनाए जा रहे हैं कि ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको याद दिलाओ खुदाई दिनों की। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, उसमें सब्र और शुक्र करने वाले के लिए निशानियां पिन्हा हैं, आयतें पिन्हा हैं। और सबसे पहले उन खुदाई दिनों को, अय्यामुल्लाह को याद करना रसूल का फरीजा करार पा रहा है। और फिर रसूल ने अपनी सुन्नत को कायम किया कि इधर गोशे रिसालत तक नवासे की विलादत की खबर पहुंची, उधर बेख्तियार सरवर कायनात ने गिरिया करना शुरू किया। और खुद सैयद शुहदा ने इरशाद फरमाया, अना कतीलुल अबरा फमन ज़करा मोमिनून इस्तअबरा, मैं ऐसा शहीद हूं कि जो आंसुओं के दरमियान शहीद किया गया हो। कोई मोमिन मुझको याद नहीं करेगा मगर आंसू बहाकर याद करेगा। कतीलुल अबरा का जिक्र है। विलादत के दिन सरवरे कायनात गम मना रहे हैं हुसैन का, और इधर नाना की गोद में नवासा आया और उधर मलाए आला में हुक्म इलाही जारी हुआ कि मेरे हबीब को नवासे की विलादत की अहमियत सुनाओ, ग्रीटिंग्स करो। फरिश्ते चले और फरिश्ते चलते चलते फितरुस को भी ले चले। ये तमाम एंजिल्स और फरिश्तों के दरमियान वो फरिश्ता था कि जिस पे अल्लाह का गजब और इताब नाज़िल हुआ था। अल्लाह ने इससे वो कैपेबिलिटी, वो सलाहियत सल्ब कर ली थी कि जिसके जरिए ये परवाज करता, उड़ सकता। और जब खिदमत रिसालत में आपने तमाम फरिश्तों ने मुबारकबाद दी तो फितरुस भी सामने आया, और फितरुस ने कहा कि या हबीब किबरिया, अपने नवासे की विलादत की मुबारकबाद को कबूल फरमाए। और फिर फितरुस ने अपने गम और दर्द को, अपने मर्ज को बयान किया। अज़ीज़ाने गिरामी, ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसाया थे, मसीह थे, डॉक्टर थे, क्योर देते थे, मगर इंसानों को
मगर आले मोहम्मद की शिफा इंसानों को नहीं फरिश्तों को नसीब हो रही है। तो जब सरवरे कायनात ने ये सुना तो इरशाद फरमाया, अल्फाज पे गौर कीजिए, साहिबुल यौमल हुसैन, गहवारे की तरफ, किराडील की तरफ, किरिब की तरफ इमाम की इशारा किया, कहा फितरुस आज के दिन का मालिक हुसैन है। साहिबुल यौमल हुसैन, आज के दिन का मालिक हुसैन है। हदीस के रिवायात के अल्फाज ये हैं, फमसहा फितरुसो बिमहदिल हुसैन, फितरुस ने अपने बॉडी को, अपने जिस्म को हुसैन के जिस्म से नहीं, महदिल हुसैन, हुसैन के गहवारे से मस किया। फितरुस ने अपने जिस्म को इमाम आली मकाम के गहवारे से, उस किराडिल से मस किया। फ़अआद अल्लाहु जनाहहु फिलहाल, परवरदिगार आलम ने उसको फौरन बालों पर अता किए। ईसा की मिरेकल्स इंसानों तक महदूद है, हुसैन इब्ने अली के मिरेकल्स फरिश्तों पर बरकतें जारी होता है। जिस्म नहीं है हुसैन का, महदिल हुसैन, गहवारे से मस किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इमाम के पास वो शिफा है कि जिस शय से निस्बत हो जाए, जिस शय से निस्बत हो जाए उसमें शिफा की तासीर पैदा हो जाए। अगर निस्बत हो जाए गहवारे को, निस्बत हुसैन से है, गहवारे में असर शिफा आ गए, इसीलिए इस खाक की निस्बत तुरबत हुसैन से है, खाक शिफा करार पाई। मोहम्मद बोले, मोहम्मद बुलंद सलवात। तज़किरा तेरी ज़मीं का आज है अफलाक पर, तज़किरा तेरी ज़मीं का आज है अफलाक पर, नाज करता है खुदा भी तेरी खाके पाक पर, नाज करता है खुदा भी तेरी अर्ज़े पाक पर, है नमाज अल्लाह की सजदा है तेरी खाक पर, है नमाज अल्लाह की सजदा है तेरी खाक पर। सजदा शबीरी बुलंद सलवात। है नमाज अल्लाह की सजदा है तेरी खाक। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद में बलद में इरशाद फरमाया कि लउक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूं इस बलद की, इस टाउन की, इस सिटी की, इस शहर की। अल्लाह कहता है मैं कसम खाता हूं, लउक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूं इस शहर की। क्यों? वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि तू रहता है इस शहर के अंदर। कसम एक नोबेल और एक ग्रैंडरस, जिसमें एक रेवरेंस हो, एक अजमत हो, एक बुलंदी हो, उसकी खाई जाती है। अल्लाह कहता है कि मैं मक्के की इस शहर की कसम खाता हूं, मगर इसलिए कसम खाता हूं वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तू इस शहर में रहता है। तो रसूल अल्लाह के कदम हाय मुबारक का अमीन है मक्का, आपके नक्शे कदम का अमीन है मक्का। तो कुदरत इलाही में, इल्म इलाही में सिर्फ नक्शे कदम की वजह से इतना मुतबर्रिक हो गया कि अल्लाह ने कसम खाई। तो जिस सुल्ब में नूरे मोहम्मद रहा, जिस गोद में नूरे मोहम्मद ने तरबियत पाई, तो वो गोद और वो सुल्ब किस कदर मुतबर्रक होगा इल्म इलाही में। रूह पड़े मोहम्मद वाले। तो ये वो नूर था कि मक्के में रहा, तो मक्के को मुअज़्ज़मा बनाया, मदीने में हिजरत की तो उसको मुनव्वरा कर दिया, नजफ में गया तो उसको अशरफ कर दिया, मशहद में आया तो उसको मुकद्दस कर दिया, और फिर यही नूर करबो बला तक पहुंचा तो उसको मोहल्ला बना दिया, मोहल्ला बना दिया, बुलंद मोहल्ला। अज़ीज़ान गिरामी, लिटरेचर में
ادب کی ہسٹری میں پوری اردو زبان میں لفظ مولا صرف 2 مقامات پر یوز ہوا ہے، یا تو عرش کے ساتھ عرش مولا، یا زمین پر کربلا کے ساتھ کربلائے مولا۔ اگر زمین کی نسبت سے دیکھیں تو عرش مولا ہے، اور اگر عرش والے زمین کی طرف دیکھیں تو کربلا زمین کا عرش ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا، یہ اوج زمین ہوا۔ زمین کے بلند ہونے کی وجہ سے فلک جھکا۔ جیسے آپ دیکھیں اس کے اندر ڈیلیکیسی دیکھیں میننگ کی، کہ فلک خود نہیں جھکا، زمین اتنی بلند ہو گئی، فلک جھکا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس لیے وہاں بھی محلہ ہے عرش کے ساتھ، اور یہاں بھی محلہ ہے کرب و بلا کے ساتھ۔ سر جھک گیا فلک کا، یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا۔ خورشید حسن محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دی کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، زہرا کے اختروں سے، اسٹارز اختر، زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، زہرا کے اختروں سے زمین آسماں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشاں ہوئی، سب ارض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، سب ارض پاک غیرت باغ جنا ہوئی، ایسا مکی ملا کہ رفیع المقام، ایسا مکی ملا کہ رفیع المقا ہوئی، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا۔ یہ ہے کربلا کا مقام۔ اور عزیزان گرامی، یہ صرف شعر نہیں، میں قرآن کی آیت اس کے دلیل میں سناؤں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج عمارت المسجد الحرام۔ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے چند افراد، بنی عبدالدار کی نسل تھے، کہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوتی تھیں، خانہ کعبہ کو کھولتے اور بند کرتے تھے۔ عباس ابن عبد المطلب، یہ ان کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ کوئی فخر کر رہا تھا کہ میرے پاس کعبے کی چابیاں ہیں، اگر میں دروازہ نہ کھولوں کوئی کعبے میں داخل نہ ہو۔ کوئی فخر کر رہا تھا کہ میرے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب ہے۔ انہی کے درمیان امیر المومنین اپنی ہیوملٹی، انکسار کا مجسم بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی اپنے کسی کارنامے پر کوئی پرائڈ اور افتخار نہیں کر رہے تھے، خاموش بیٹھے تھے، اور سب لوگ اپنے اپنے ذاتی نہیں اضافی کارناموں پہ فخر کر رہے تھے، وصف ذاتی پر نہیں، وصف اضافی پر۔ امیر المومنین کی یہ سادگی قدرت کو پسند آ گئی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ یستوون۔ کیا تم نے کعبے کی خدمت کرنے کو اور حاجیوں کے پانی پلانے کو اس شخص کی حرمت کے برابر قرار دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور خدا کی راہ میں جنگ کرتا رہا؟ امیر المومنین کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ اس شخص کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔ دامن جو پاک صاف تھا دشت مصاف کا، احرام باندھا کعبے نے اس کے طواف کا۔ عاطف نے دی صدا
کہ زہے شان کربلا، مختار کائنات ہے مہمان کربلا، پھولوں سے آج بس گیا دامان کربلا، بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا، بس اب نواں بہشت ہے بستان کربلا، خورشید دی کے فیض سے کیا کیا شرف ملے، خورشید دی کے فیض سے کیا کیا شرف ملے، روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف ملے۔ ضرور پڑھے محمد روشن ہے جس سے عرش وہ در نجف۔ عزیزان گرامی، یہ کرب و بلا کا مقام وہ حسین ابن علی کا مقام، اور کہا کہ آج کے دن کا مالک حسین ہے، یہ وہ ایام اللہ ہیں کہ جن کی یاد کے منانے کا اور جن کی عظمت و حرمت کے منانے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ ائمہ نے محرم کے منانے کے اصولوں کو، ایٹیکیٹس کو اور آداب کو تعلیم دیا۔ آپ فرماتے ہیں امام کہ میرے والد ماجد جب محرم کا چاند دیکھتے پورے مہینے کوئی شخص ان کو ہنستا ہوا نہ دیکھتا، من بکا و ابکا اور تباکا، جو رویا یا رلایا یا جس نے رونے والوں کی صورت بنا لی۔ عزیزان گرامی، ہپوکریسی، ظاہر داری، بناوٹی پن ہر چیز میں برا ہے، خاص طور کے عبادت میں، لیکن یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے، یہ حسین ابن علی کی عظمت ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ دل سے روئیں یا دل سے کسی کو رلائیں، اگر رونے والوں کی صورت بھی بنا لیں تو رب العالمین اس بناوٹی عمل کو اہل اخلاص کا درجہ بدل کر عبادت قرار دے دے۔ اس حدیث سے حسین ابن علی کی عظمت کو ملاحظہ فرمائیے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث آپ سنتے ہیں مگر ایک رخ سے اس حدیث میں حسین ابن علی کی عظمت بھی پنہا ہے، کہ اگر اس کی طرف نسبت ایک کانشس ایکشن کی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک اخلاص عمل قرار پائے، عمل کا خلوص قرار پائے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ اس میں بڑے باطنی اسرار ہیں۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یہ مقام وجود ہے۔ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یہ مقام بقا ہے۔ مقام وجود رسول سے حسین کا، مقام بقا حسین سے رسالت کی۔ مقام وجود پر حسین 3 شعبان اور 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک 57 سال ہے۔ حسین کا وجود رسول کے ذریعے، رسول کی بیٹی کے فرزند حسین کا وجود رسول کے ذریعے مقام وجود پر 57 سال ہے، مگر مقام بقا پر شہادت سے، ذبح عظیم سے رسالت کی بقا قیامت تک جاری ہو سکتی ہے۔ مقام وجود حسین و منی 57 سال، انا من الحسین، قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو اب جب تک قیامت تک اسلام زندہ ہے، حسین کا ذکر زندہ ہے۔ جب تک نمازیں ہیں، نمازوں کے ساتھ حسین ابن علی کی زیارت ہے۔ جب تک ارکان شریعت پر عمل ہوگا، مناسک کرب و بلا کا بیان اور ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، حسین مجھ سے ہے، یہ مقام اضافی ہے، یہ وصف اضافی ہے، یہ نسبت ہے۔ حسین کا وصف اضافی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، نبی سے ہے۔ قرآن مجید میں ایک نبی کے زبانی کہلوایا، حضرت ابراہیم ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ ہے منیت کی تعریف قرآن میں، جو میرا اتباع کرے گا وہی میری منیت میں قرار پائے گا۔ یہ ظاہری منیت نہیں ہے، اگر اتباع نہیں تھا تو نوح کو خبر دی قدرت نے، انہو لیس من اہلک، یہ تیری منیت میں نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل تیرے عمل سے مختلف ہے۔ تو صرف رشتے کی بنیاد پر کوئی نبی کی منیت میں نہیں آتا۔ قرآن مجید نے 3 مثالیں دی ہیں۔
तब्बत यदा अबी लहब, चचा का रिश्ता है, बड़ा रिश्ता, नबी से बड़ा रिश्ता, चचा का रिश्ता। तब्बत यदा अबी लहब। कुरान मजीद में लूत और नूह की बीवियों का जिक्र है। फखानता, उन्होंने खयानत की अपने शौहरों से, अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया, बराबर का रिश्ता। और कुरान मजीद में पिसरे नूह का जिक्र है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, छोटा रिश्ता। ये तीन ही लॉजिकली पॉसिबल रिश्ते हो सकते हैं, या तो बड़े या बराबर के या छोटे। कुरान मजीद ने तीनों मिसालों को पेश करके बयान किया कि अगर रिश्तेदार रिसालत का इत्तिबा वफा के साथ नहीं कर रहा था तो वो रिश्ते की हैसियत से रिकग्नाइज नहीं किया गया, तो अब कोई भी रसूल से रिश्ते को साबित कितना ही करने की कोशिश करे, जब तक ये साबित न कर दे कि रसूल के उस रिश्तेदार ने रसूल के हुक्म को माना था या नहीं था, तब रिश्ते की हुर्मत का एहतराम होगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। सिर्फ ये कहकर कि ये रिश्ता है रसूल से, ये फैलेसी करार पाएगी जब तक इस बात का सबूत नहीं मिलेगा कि ये रिश्तेदार इत्तिबाए रिसालत में कामिल था या नहीं था। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मजीद ने खबर दी, फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरा इत्तिबा करेगा उसको ही मेरी मिन्नियत नसीब होगी। तो अब रसूल ने कहा हुसैनुन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, इसके माने नहीं कि हुसैन मेरे नवासे हैं, बल्कि हुसैन मुझसे है। हुसैन इब्ने अली मेरी इत्तिबा के मुकम्मल मजहर है, यानी जब तक मैं जिंदा हूं मेरे अमल से मर्जी इलाही का सबूत मिलेगा, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो हुसैन का हर अमल अल्लाह की मशीयत करार पाएगी। इसीलिए जब हुसैन इब्ने अली मक्के से चले और बैठ गए अपने रहवार पर, भाई ने आकर रहवार की लगाम को पकड़ा, मोहम्मद हनफिया ने आखिरी वक्त भी कहा, मौला आका कहा आप चले, आज़िम सफर हुए, बेख्तियार कहा कि भाई मैंने नाना को ख्वाब में देखा है और नाना ने मुझे हुक्म दिया है, इन्नल्लाह शाअ अयरानी फी सबीलिही कतीला, अल्लाह चाहता है मुझको अपनी राह में कतील दे, अल्लाह चाहता है मुझको अपनी राह में कतील देखे। मोहम्मद हनफिया ने कहा कि मौला अगर आप शहादत पर अज़्म कर चुके हैं तो आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा करें, मगर मेरी बहनें, मेरी भतीजियां, ये अहले हराम, कहा इब्ने मोहम्मद हनफिया इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सवाया, इब्ने अब्बास अल्लाह चाहता है उनको अपनी राह में कैदी बना हुआ देखे। हुसैन इब्ने अली अल्लाह की मशीयत को बयान कर रहे हैं, इन्नल्लाह शाअ अन यरानी फी सबीलिही कतीला, अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह चाहता है उनको अपनी राह में असीर देखे, कैदी बना हुआ देखे। 28 रजब को हुसैन मदीने से चले और फिर वलीद का तलब किया दरबार में। मरवान बैठा था, वलीद से इमाम की गुफ्तगू हुई और फिर इमाम को जलाल आया, नीली आंखों के बेटे तू मुझे कत्ल से डराना चाहता है कि बनी हाशिम के जर्रार तलवारें लेकर दाखिल हुए। इमाम ने रोका कि मुझे पहल मतलूब नहीं। कुरान मजीद में शुजाअत का लफ्ज नहीं आया, बहादुरी का लफ्ज नहीं आया। कुरान मजीद ने शुजाअत को साबिर के रूप में बयान किया। कुरान मजीद के नजदीक बहादुर वो है कि जो सब्र करने वाला हो। तो हुसैन इब्ने अली अपने जिहाद का आगाज सब्र के साथ कर रहे हैं। वापस आए, सफर की तैयारियों का हुक्म दिया, नाना का मदीना छुट रहा है। हुसैन का मौला, जहां हुसैन ने आंखें खोली वो शहर छुट रहा है। नाना का मदीना नहीं, कब्र रसूल से भी जुदा हो रहे हैं। वालिदा की कब्र भी छुट रही है, भाई हसन का मजार भी छुट रहा है। मगर बाबा
अली का रोजा हुसैन इब्ने अली को करीब मिलेगा अपने मरकज से। नाना के शहर में रसूल के सहाबियों के शहर से हुसैन रुखसत हुए, मगर ये आलम है जमाने का एक शब की तारीकी में मदीने से निकल रही है। अहले हरम के पर्दों का ध्यान और ख्याल भी है हुसैन को। रावी रिवायत करता है कि मैं शहर मदीना जाता था जैतून बेचने के लिए, हर साल जाता था। अहले मदीना को बहुत खुश देखता, उनको बरकत में देखता, मगर जब इस मर्तबा दाखिल हुआ हर शख्स को रोते हुए देखा, हर शख्स की आंख में आंसू देखे। मैंने पूछा अहले मदीना कौन सी बला नाजिल हो गई, तुम सब रो रहे हो? कहा तुझे खबर नहीं है, मुसाफिर है, फर्जंद रसूल मदीना छोड़कर जा रहे हैं। रसूल ज़ादियाँ मदीने से रुखसत हो रही है। बनी हाशिम के नौनिहाल मदीने के चमन को वीरान कर रहे हैं। रावी कहता ये सुनकर मैं बनी हाशिम के महल्ले की तरफ बढ़ा, मगर मुझे दूर ही रुक जाना पड़ा, इसलिए कि आने जाने के रास्ते बंद थे, कनातें लगी हुई थी, और एक दराज कद का जवान जिसका चेहरा चांद की तरह से चमक रहा था, हाथ में नंगी तलवार लिए पर्दों की हिफाजत कर रहा था। बाद में मुझे खबर मिली वो दिलावर जो पर्दों की हिफाजत कर रहा था कमरे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास थे। रावी कहता है एक घोड़े पे सवार गुजर रहा था कि जिसका फेस कनात की सतह से बुलंद था। उस दिलावर ने तलवार को लहराया, उतर जा प्यारा गुजर, सैदानिया नाकों पे बैठी वाली। रावी कहता है कि बच्चे छतों पे चढ़ गए थे इस मंजर को देखने के लिए। उस दिलावर ने अली अकबर को बुलाया, बेटा इन बच्चों को उतार दो, सैदानिया नाकों पे सवार होने वाली। रावी कहता है बैतुल शरफ के सामने एक कुर्सी बिछी हुई थी, एक जिस पर इमाम जलवा अफरोज थे, रौनक अफरोज थे। एक नागा कुछ नाके आए और उन नाकों पे पानी के मशकीजे सवार किए, नाकों को आगे बढ़ा दिया। फिर कुछ और नाके और ऊंट आए, सामान सफर का सवाल किया, नाकों को आगे बढ़ा दिया। रावी कहता है अब ऐसे नाके आने लगे एक जिनके ऊपर महमिलें रखी हुई थी और जो अमारिया थी, एक एक बीवी चादर में मलबूस निकलती, उसका अजीज और महरम उसको नाके पे सवार करा देता। उम्मे लैला निकली, अली अकबर ने सवार कराया। उम्मे फरवा निकली, कासिम ने सवार कराया। उम्मे कुलसूम निकली, हजरत अब्बास ने सवार कराया। नागा अली अकबर ने इमाम के गोशे मुबारक में आके कुछ कहा, इमाम कुर्सी से उठ के खड़े हुए, अब्बास आगे बढ़े, फर्राशों को पर्दों के पकड़ने का सख्ती से हुक्म दिया। कनीज़े के झुरमुट में अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा बैतुल शरफ से निकली। ज़ैनब नाके के करीब आ गई, अब्बास झुक गए, ज़ानुओं को बहन के सामने खम किया। अली अकबर ने बाजू थामा, कासिम और मोहम्मद ने सहारा दिया। इस तरह से शहजादी सानिया ज़हरा मदीने में अपनी सवारी में बैठ गई। मगर जब 11 मुहर्रम आई, ये काफिला कूबे की तरफ जाने लगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने मखमल को देखा, पलट कर जले हुए खेमों को देखा। एक मर्तबा सहरा में बिखरे हुए लाशों को देखा और पुकार कर कहा, अब्बास बहन को बड़ी शाम दिलाए थे। आकर फिर अब्बास नाके में बहन को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बहक़ शहीदान करबला जो मन्नात मस्जिद उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा तो तुमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा और दोस्तमाबाद की हर बला से जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। परवरदिगार मिल्लत इस्लामी को सेहत व इत्तेफ़ाक़ अता फरमा, अपने नूर का हुज्जत का ज़हूर जल्द फरमा।
अज़ा का महीना हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों। क्या सब्र था हुसैन का, सहते थे गम पे गम, क्या सब्र था हुसैन का, सहते थे गम पे गम। 18 दाग लेके कलेजा हुसैनियों, 18 दाग लेके कलेजा हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों। खैमे जले तीरे हुई इतरते इमाम, खैमे जले असीरे हुई इतरते इमाम। उम्मत घर नबी का जलाया हुसैनियों, उम्मत घर नबी का जलाया हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों। बीमार गम असीर जंजीर तोख में, बीमार गम असीर जंजीर तोख में। है इमाम वक्त कर्तबा हुसैनियों, है इमाम वक्त कर्तबा हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों। वारस हुए असीर हुई इतरते इमाम, वारस हुए असीर हुए इतरते इमाम। उम्मत घर नबी का जलाया हुसैनियों, उम्मत घर नबी का जलाया हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों, फिर आ गया अज़ा का महीना हुसैनियों। मातम करो शहीदे जफा का हुसैनियों,
بدلی